Hey everyone, this video is all about RBI Grade B examination 2026. So we will try to cover everything about RBI Grade B examination in 30 minutes. So let's start the discussion. So here is our agenda. We'll be discussing about job profile, hierarchy, eligibility, vacancy trend, exam pattern, syllabus, cutoff, and everything that you need to know about the RBI Grade B examination 2026. So first we will be starting with the job profile, like what you guys will be doing in the RBI organization, right? So this is, guys, India's one of the most prestigious job with high salary, with good lifestyle and massive career opportunities, right? If I talk about your job profile, this is going to be one of the most important question. Why? Because this is what you are going to do in this organization. एक job profile समझना बहुत important हो जाता है. आप एक बहुत टाइम तक जिसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? और काफ़ी एक लंबा टाइम आप यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में यू गाइज विल बी डेफिनेटली यहाँ पे जो आप बिताने वाले हो, तो आपको जॉब प्रोफाइल सबसे पहले समझना चाहिए. सो यू विल बी गाइज वर्किंग एज अ मैनेजर इन इंडिया सेंट्रल बैंक. नाउ दिस मीन्स दैट यू विल बी सपोर्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? You will be supporting the currency management function, banking supervision, handling government accounts. It can be economic research, it can be financial inclusion initiatives. So your work will be definitely going to be analytical. It will be going to be research driven, policy oriented, and this is a kind of stable job with zero political pressure. Plus a lot of intellectual work and respect is also there in it, right? And your work profile will definitely depend on कि आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है, राइट? सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. वी हैव कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बजट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, सुपरविजन. आई हैव सम फ्रेंड्स इन डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन. सो हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग तरह का काम होता है, राइट? सो आपका वर्क प्रोफाइल यहाँ डिपेंड करने वाला है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो. देर इज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे इंस्पेक्शन होते हैं. फिनटेक रिलेटेड काम फिनटेक डिपार्टमेंट में होता है. सो डेफिनेटली योर जॉब प्रोफाइल इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है. बट ब्रॉडली योर वर्क विल बी एनालिटिकल, इट विल बी रिसर्च ड्रिवन एंड इट विल बी पॉलिसी ओरिएंटेड. आप यहाँ या तो रेगुलेशंस फॉलो करवा रहे होगे, राइट? एनफोर्समेंट करवा रहे होगे, इंस्पेक्शन करवा रहे होगे, या फिर ड्राफ्टिंग करवा रहे होगे रेगुलेशंस का, राइट? So definitely you are going to contribute to the nation building here. आप जानते हो RBI is the money market regulator, वो monetary policy formulate करते हैं. तो यहाँ पे आपका जो काम रहने वाला है, this will be, you will be guys directly or indirectly contributing to the nation building here. अच्छा, इसकी पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे भी हो सकती है, anywhere it can be in India, right? There are so many RBI offices, तो आपकी पोस्टिंग जो है वो कभी भी हो सकती है. प्लस there will be accommodation facility as well. Coming to the structure of this organization, the hierarchy and promotion policy, so I can say it starts with assistant. So RBI assistant करके एक recruitment आता है, वहाँ से आपका ये चालू होता है. और जो आपका selection होने वाला है, that will be at grade B level. So grade B level means manager level, right? आप यहाँ से चालू करने वाले हो. You guys are going to start from here. और उसके बाद आप ladder climb करोगे, assistant general manager, DGM, GM, CGM, principal chief general manager and so on. So RBI is having a clean promotion structure in India as of now, right? The promotion structure is quite clean. The hierarchy is clearly defined. और आप कहाँ से चालू करने वाले हो? ग्रेड बी से चालू करने वाले हो. It will take anywhere around 5 to 6 year जब आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे जाना पड़ेगा. और हर पोस्ट आपका यूजुअली 4-5 years 6 years के अंदर आपका प्रमोशन यहाँ पे रहता है, राइट? सो दिस इज द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ RBI एंड ये इनका हायरार्की रहता है. आप यहाँ मैनेजर लेवल पे ज्वाइन करने वाले हो. Usually they hire assistants also, but they promote it to the assistant manager. तो यहाँ assistant manager पे अलग से कोई recruitment नहीं निकलता. RBI assistant का निकलता है और RBI grade B का निकलता है, that is manager level, right? आप manager level पे join करने वाले हो and it is a good start. This is a managerial position and आपका यहाँ पे assistant general manager in the next 5 to 6 years, then deputy general manager, then general manager and so on. You can climb this रेगुलेटरी बॉडी लैडर हियर. अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं, ग्रेड्स की बात करूं, तो दीज आर द ग्रेड्स. यू विल बी स्टार्टिंग विद ग्रेड बी. ग्रेड बी इज मैनेजर, देन ग्रेड सी, डी, ई, ऐसे करके आप आगे यहाँ पे चलते जाओगे. कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योर एज शुड बी एटलीस्ट 21. यू शुड बी एटलीस्ट 21 और आप 30 से कम होने चाहिए टू बिकम एलिजिबल फॉर द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन.
Here you need to have a graduation degree in any discipline with 60% marks and your post graduation या फिर आपका post graduation है, देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है. So even if you are a graduate then also you are eligible. Even if you are a post graduate then also you are eligible, but the criteria is different. In graduation you need to have 60% marks. You are eligible in any discipline. Doesn't matter you are coming from arts, you are coming from science, you are coming from commerce. It doesn't matter. Post graduation, any discipline, again 55% marks is the bare minimum requirement here, right? So this is your eligibility. अच्छा, one thing that you need to know here is अगर आप जनरल के अंदर आते हो कास्ट में तो फिर आपको 60% इज द बेयर मिनिमम यू नीड टू हैव इन ग्रेजुएशन. बट इफ यू आर कमिंग इन SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स, देन even if you are having 50% marks in your graduation, then also you are eligible. Coming to the post graduation, minimum 55% चाहिए, पर अगर आप SC, ST, PWD candidates में आते हो तो फिर then even if you are having the pass marks, still you can appear for this examination. So that's the minimum qualification requirement as for the latest notification 2025 of RBI grade B. और generally education यहाँ पे qualification बहुत ही open है, it is not going to change in the 2026 as well. जो आपका graduation है, it should be a 3-year duration, right? It should be a 3-year duration और वो इसके equivalent भी अगर आपने कुछ किया होगा तो that will also be eligible, right? You will be also eligible for that. Now in case of post graduation degree, your degree should be at least of 2 years duration, right? It should be at least of 2 years duration. तो यहाँ पे bare minimum requirement है कि जो आपकी post graduation है वो कम से कम 2 साल की तो हो ही. Apart from eligibility, you do have a number of attempt criteria as well. You definitely do have a number of attempt criteria here. Candidates belonging to the general category EWS who have already appeared 6 times for phase 1 examination for this post in the past are not eligible to apply. If you are from general category, if you are from EWS category and you have appeared for RBI grade B examination at least 6 times, you are not eligible in that case, right? But as of now, there is no such restriction on SC, ST, OBC and PWBD candidates, right? So number of attempt criteria is also there. So you need to always keep in mind कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो. ऐसा नहीं कि कैजुअली उठ के कभी भी चले गए एग्जाम दे दिया. बहुत सारे स्टूडेंट जैसे भी देते हैं, बट इट डजंट मेक एनी सेंस. You have a number of attempt criteria as well and you need to take this very, very seriously. Coming to the vacancy trend, we can see in 2021, 270 vacancies were there. In 2022, 238 vacancies were there, and in the recent years, we can see a sharp decline in the number of vacancies, right? It can remain constant in 2026, it may increase as well. As of now, there is no such information, but anywhere it can be around 70 to 100. It can be anywhere around 70 to 100, right? So in 2024 66 vacancies were there and in 2025 आपकी 83 vacancies है. तो यहाँ पे थोड़ा सा increasing trend वापस देखने को मिला है, right? For your 2026 anywhere around 70 to 100 vacancies can be there, right? As of now there is no such information, but if we take the best average, then इस range में तो आपकी generally RBI grade B की recruitments होती है. Coming to the exam pattern, which is going to be quite crucial. You have phase 1, you have phase 2, you have interview, just like any other regulatory body examination. Here also 3 phases are there. In your phase 1, you are having subjects like reasoning, general awareness, English language, quantitative aptitude. Now we are going to discuss about the detailed syllabus as well of all these subjects, so no worries at all. But first, let me just cover the examination pattern. So this is going to be a preliminary examination. इसका marks आपका final selection में बिल्कुल भी count होने वाला नहीं है, but you need to clear this examination and there is sectional cutoff as well. So reasoning में अलग से marks लाने पड़ेंगे. General awareness you need to clear अलग से. English language, quantitative aptitude सबको अलग से आपको clear करना पड़ेगा. So it's not like SEBI and PFRDA कि कुछ पढ़ लिया, reasoning छोड़ दी या quant छोड़ दी और बाकी सारे बहुत strong कर लिए. So it doesn't work like that. You need to be good with reasoning, general awareness, English and quantitative aptitude, right? You need to equally be good in each and every subject in order to qualify the cutoff criteria, and 200 questions will be there. General awareness के काफ़ी सारे questions आते हैं, reasoning के काफ़ी सारे question आते हैं, English and quant के you get 30 questions each. Durations भी given है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि duration आप mix कर सकते हो. You cannot mix the English का 25 minutes in general awareness का 25 minutes. You cannot use the reasoning का 45 minutes in general awareness, right? Sectional time limit है, sectional cutoff है. You need to complete that within the given duration itself. Okay,
So 200 questions had 200 marks, 1 marker each, and you will be getting 120 minutes here, right? You will be getting 120 minutes here. काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे क्वांट में स्ट्रगल होता है. Why? Because there are 30 questions and there is only 25-minute duration which is given here, right? So speed और accuracy का गेम है. जनरली एग्जाम्स में ऐसा ही होता है, यहाँ थोड़ा और बढ़ जाता है. वाई? बिकॉज वी डू हैव अ सेक्शनल कट ऑफ प्लस वी डू हैव अ टाइम लिमिट एज वेल हियर फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको 120 मिनट्स मिलते हैं 4 सब्जेक्ट डील करने के लिए. नहीं, इंडिविजुअल क्वांट के लिए 25 मिनट्स अलग, इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स अलग, एंड सो ऑन. सो दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल फ्रॉम द वेरी फेज 1 itself, right? From the very phase 1 itself. Now this will be your qualifying phase. उसके बाद you will be having your mains examination, and the marks that you are getting in your mains examination will actually matter in your final selection, right? So here we are having 3 subjects. You need to again study English, but now from the descriptive angle. Earlier you studied in phase 1 from the objective angle, from the MCQ approach. Now you need to show your descriptive skill. So phase 2 is about knowledge plus your typing skills plus your writing skills, right? So here you will be studying economic and social issues. Obviously अगर आपको एक बहुत बढ़िया आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है तो आपको इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का आइडिया होना चाहिए, इंटरनेशनल इश्यूज का भी आइडिया होना चाहिए. यू शुड बी गुड विथ इंग्लिश. देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज इस ऑर्गेनाइजेशन का काम मेजरली फाइनेंस से रहता है, मनी मैनेजमेंट से रहता है, राइट? रिलेटेड टू डिफरेंट बैंक्स, रिलेटेड टू डिफरेंट NBFCs, international organization, even the government of India. So I can say understanding of finance and management is very crucial here. But the good part here is, it may be good, it may be bad for some students. You will be having a combination of objectives and descriptive. So ESI and FM are 50% objective and 50% descriptive here, right? 50% objective, 50% descriptive here. So you need to attempt 4 descriptive questions. 2 questions will be 15 marker, 2 questions will be 10 marker. So यहाँ आपका 50-50 हो गया. 100 मार्क्स का ESI आ रहा है तो उसके अंदर से आपको 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव अटेंड करना है और 50 का MCQs अप्रोच करना है. सेम फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. Here this is not financial management, this is finance and management. So you need to study both finance as well as the management part of the subject. Again, it will be 50% objective and 50% descriptive, and English will be completely descriptive, right? English will be completely descriptive. In ESI, you will be getting 90 minutes for your descriptive and 30 minutes for your objective. Same case with finance and management. Obviously, 50% of the portion, approx 50%, there is no exact line of difference I can draw, but 50% around आपका finance आ जाएगा और 50% आपका management आ जाएगा, right? So this is going to be the phase 2 examination, mains examination of RBI grade B, and it will be testing your objective skills, your analytical skills, as well as your writing skills, your descriptive skills. So it is going to be challenging. For sure it is going to be challenging. Then comes your interview, जहाँ आपका actual knowledge test और communications test होता है कि how well you communicate the things. आप अपनी existing job role, आप अपना existing पूरा आपके बारे में कितना अच्छे से समझा पा रहे हो. That is the real test जो कि आपका इंटरव्यू के अंदर होता है, and interview will be having 70 marks here, right? So this is phase 1, phase 2 and last year interview. So ये सारे levels आपको यहाँ पे clear करने हैं. These are the phases of this examination. This is the exam pattern. Now coming to the syllabus part, which can be one of the most important discussion. Why? Because अगर हम एक बार syllabus देख लें तो हमको पता होता है कि हमारी strategy कैसे बनने वाली है, right? कि हम कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करने वाले हैं. सो सिलेबस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. कमिंग टू द फेज 1 सिलेबस, वेयर यू आर हैविंग टॉपिक्स लाइक रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. फेज 1 की बात करूं तो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम क्वांट. इट विल बी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क पाइप्स, नंबर सिस्टम, राइट? So you need to be good with data interpretation, you need to be good with quadratic equation, probability and areas like this जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो. बट ये उतना सिंपल नहीं होने वाला. यहाँ पे एक नॉर्मल रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन से आरबीआई ग्रेड बी का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो डेफिनेटली यू नीड टू प्रिपेयर इट ऑन अ हायर लेवल. यू नीड टू प्रिपेयर इट ऑन अ हायर लेवल. सो ये मैं बोल सकता हूँ आपको, जो आपका IBPS के एग्जाम्स होते हैं, जो आपका सेबी का एग्जाम होता है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको यहाँ पे लगने वाला है क्वांट की अगर मैं बात करूं तो. कमिंग टू द रीजनिंग, अगेन एक कंसिडरेबल वेटेज है इस सब्जेक्ट का. सो हियर वी आर हैविंग
कोडिंग डी कोडिंग, फिर उसके बाद आपका डायरेक्शन सेंस हो गया, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगेन इट इज वन ऑफ द आई कैन से चैलेंजिंग पार्ट जो आपको मैनेज करना है. आप देखो जिनका क्वांट रीजनिंग और ये सब सॉर्टेड होता है उनके लिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंजिंग. सो ये हमेशा सिचुएशनल होता है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग जोन है. कितने लोगों का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग जोन होगा, कितने लोगों का ईएसआई होगा, कुछ लोगों का रीजनिंग बहुत अच्छा होगा. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रॉन्ग जोन. सो हियर वी आर हैविंग these topics that you need to study for the reasoning portion. Then we have the English language, so you should be good with grammar, vocabulary, reading comprehension, cloze test, rearrangement, parajumbles, error detection and so on. So this will be your English language. And if I talk about the general awareness, this is going to be one of the most unpredictable area of the RBI Grade B examination phase 1, right? Now this can change the full game of your RBI Grade B preparation. Why? Because it is so unpredictable कि कभी RBI notifications बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी फाइनेंस करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी रिपोर्ट्स में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी जनरल फाइनेंस, कभी कभी जनरल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक दे डिड इन 2025 एग्जामिनेशन. जनरली RBI नोटिफिकेशन और फाइनेंस करंट अफेयर्स का वेटेज यूज टू बी वेरी गुड इन 2023, in 2022, in 2024 ऑल्सो. बट इफ आई टॉक अबाउट 2025 एग्जामिनेशन, वहां पे एकदम से RBI नोटिफिकेशंस एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स का ड्रास्टिकली वेटेज यहां पे गिरा दिया गया था. बट वी नेवर नो, इन 2026 दे कैन अगेन start asking more and more questions related to these two areas. So definitely you need to have a very balanced approach for general awareness. You cannot have that biasness in your mind कि okay RBI notifications नहीं पूछते हैं या फिर जनरल करंट अफेयर्स नहीं पूछते, पिछले 4 साल से RBI नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं. सो लेट्स completely focus on these two areas. No, you cannot have a biased approach for your general awareness preparation. नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. रीजन बीइंग ये सबसे ज्यादा चेंज होने वाला ट्रेंड में आता है, राइट? देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड इन RBI Grade B जनरल अवेयरनेस. सो डोंट फॉलो एनी ट्रेंड एज पर माई एडवाइस. And what you need to cover is cover each and every aspect. Cover the RBI notifications, cover the finance current affairs, do cover the PIB, right? रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से करनी है. कौन कौन सी रिपोर्ट्स है मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर. जनरल करंट अफेयर्स, ESI करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर करंट अफेयर्स, यू नीड टू बी गुड विथ ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, राइट? डोंट हैव अ बायस्ड अप्रोच इन जनरल अवेयरनेस. नाउ दिस इज द कट ऑफ ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन जो कि आपका अक्टूबर 2025 के अंदर हुआ था. तो दिस इज द कट ऑफ स्कोर कार्ड भी आपका रिलीज हो गया था अभी रिसेंटली. एंड दिस इज द कट ऑफ आई कैन से मार्क्स ऑफ RBI Grade B फेज 1 2025. सो हियर यू कैन सी कि मिनिमम आपको यहाँ पे 30% का कट ऑफ दिया गया था फॉर 2025 फॉर द जनरल स्ट्रीम. इफ आई टॉक अबाउट जनरल स्ट्रीम, सो यहाँ मिनिमम 30% मार्क्स आपको इंडिविजुअल लेके आने थे, 30%, राइट? ये मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट वाइज. तो इतना तो आपका टारगेट हमेशा होना ही चाहिए. अभी काफ़ी सारे लोगों को लगेगा सर 30% मार्क्स लाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में. सो बड़ी बात होती है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सिंपल एग्जामिनेशन, राइट? यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट होने वाला है, यहाँ आपका एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होने वाले हैं, यहाँ आपका रेजिलियंस टेस्ट होने वाला है. सो डेफिनेटली 30% यहाँ पे लेके आना भी बहुत ही कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो काफ़ी सारे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो यू नीड टू बी रियली क्विक, यू नीड टू बी रियली एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू स्पेशली क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस हियर, राइट? इंग्लिश का भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पे रहा था. तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, और यहाँ अग्रेसिवली आपको अभी से यू नीड टू स्टार्ट योर 2026 का प्रिपरेशन, बिकॉज RBI Grade B इज सच अ notification that comes every year. It's not like that RBI is publishing बार बार रिलीजिंग इट, कोई सर्टेनिटी नहीं होगी 2 साल में निकाल दिया, कभी निकाला कभी नहीं निकाला. इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल ऑलवेज कम. यू कैन सी द ट्रेंड. हमेशा RBI Grade B का नोटिफिकेशन आया है. सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2026 के लिए, सो डेफिनेटली यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेज 1 के अंदर, क्योंकि फेज 1 डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है. कमिंग टू योर फेज 2 एग्जामिनेशन, द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, ESI बोलते हैं हम इसको. सो हियर it's a mix of the social issues that are prevalent as of now, and some part of economics is also there either.
सो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट. यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स. पॉवर्टी, employment generation, sustainable development and environmental issues. So these are the very basic stuff that you need to know. Then you need to know about the Indian economy, the history and everything related to the Indian economy, public finance, linkages with the economy, कैसे कैसे दूसरी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी कनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. सो सम ऑफ द टॉपिक्स आर देयर जिससे आपको पूरा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, सोशल इश्यूज का, और इंटरनेशनली इकोनॉमी में क्या चल रहा है एंड सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, उसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको इस वाले सब्जेक्ट से डेफिनेटली मिलता है. दिस इज योर पेपर 1 इन योर फेज 2 एग्जाम. देन वी हैव योर पेपर 2 विच इज इंग्लिश, विच टेस्ट योर राइटिंग स्किल्स, राइट. सो यू नीड टू बी रियली गुड विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. वाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ फेज 2. ESI भी 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इंग्लिश आपका 100% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है. तो यहां पे आपकी राइटिंग स्किल्स एक्चुअली डू मैटर, राइट. सो ये बहुत अच्छे से आपके राइटिंग स्किल्स होने चाहिए. प्लस आई विल एडवाइज यू गाइज, भले ही आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डजंट मैटर. यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द डिस्क्रिप्टिव right now, from right now. Why? Because ultimately it is a skill and it takes time to gain those skills, right. It's not a matter of कि आप 10 दिन में 20 दिन में कर लोगे, नहीं होगा, टाइम लगता है, काफ़ी महीने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है. सो आई विल एडवाइज यू गाइस कि आप आज से ही थोड़ा प्रैक्टिस चालू करना स्टार्ट कर सकते हो. उससे डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दैट बेनिफिट ऑफ अर्ली स्टार्ट. Then comes the general finance and management in an RBI grade B examination at Olio board. I am taking your general finance subject. So starting with your finance, which is finance and management, which is your paper 3. Your finance is divided into 3 parts. Financial system, तो यहाँ पे आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे डिजाइन किया गया है, व्हाट आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या फंक्शन है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो आप, उसके आपको फंक्शंस बताए जाते हैं पूरे एंड टू एंड, कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करती है एंड व्हाट चेंजेस दे आर ब्रिंगिंग इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देन कम्स द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. ऑब्वियसली आरबीआई के अंदर जाने के बाद आपको बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ेगा, उनको गवर्न करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा. सो यू शुड बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, हाउ द स्ट्रक्चर इज framed, what are the developments in financial institutions, AIFIs like SIDBI, EXIM, NABARD, NHB, NABFID, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना रिक्वायर्ड है. देन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या चल रहा है और उनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की एरिया जो आपके सिलेबस का है. रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. वी ऑल नो दैट IT इज नाउ अ की एनेबलर, right, in the banking and finance sector especially. So that's why you need to know the role of IT in banking. अभी RBI ने खुद का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा. इट्स अ टेक्नोलॉजी, जो उसके पीछे जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. अगेन उस पर भी RBI काफ़ी सारा काम कर रहा है. देन यू नीड टू नो अबाउट द नॉन बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग हमने समझ लिया, नाउ यू नीड टू नो अबाउट द नॉन बैंकिंग सिस्टम. Developments in digital payment. We all know UPI is a game changer for India, right? So UPI हो गया, RTGS, NEFT, तो बहुत सारे तरीके के टॉपिक्स आपके यहाँ पे हम पढ़ते हैं इन डेवलपमेंट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. Then we have your financial markets, which is your primary and secondary market. RBI is the money market regulator here, but still you need to study about each and every market की capital market क्या होता है, what is an IPO, what is an FPO, what is private placement, right? So ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं. एंड यू कैन नोट हियर हर टॉपिक के अंदर आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है. इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिसेंट डेवलपमेंट्स वर्ड आपका mentioned. That means finance is not just about the static portion, but you need to also cover the dynamic portion. So finance current affairs becomes relevant for your phase 1 general awareness plus your phase 2 finance as well. Most of the questions coming in phase 2 are directly related to डायनेमिक फाइनेंस करंट अफेयर्स एज वेल. सो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से फाइनेंस करंट अफेयर्स, RBI सर्कुलर्स पढ़ के जाना है. देन वी हैव द जनरल टॉपिक्स लाइक बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, रिस्क मैनेजमेंट, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, alternate sources of finances,
corporate governance in banking, again this is going to be one of the most crucial area. IndusInd Bank का केस देख लो, bad example of corporate governance, and there are so many other bad examples of corporate governance like Yes Bank, like Punjab National Bank and so on. 8th वाला topic which is related to your basics of accounting and financial statements. Earlier 2023 से पहले आपके सिलेबस में नहीं था, they have introduced this in 2023 and it is going to be one of the most important chapter. Why? Because फाइनेंस को समझने से पहले ये वाला टॉपिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग का, फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस एज वेल. सो बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर यू शुड बी इन अ पोजिशन दैट आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाए, P&L अकाउंट आ जाए, बैलेंस शीट आ जाए, तो आप उसको एटलीस्ट पढ़ के समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है, राइट? बिल्कुल वो फॉरेन एलिमेंट टाइप वाला फील नहीं आए. तो इसीलिए ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर 2023 में री इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई में. इट यूज टू बी देयर बैक इन 2016-17, फिर हटा दिया था, फिर वापस री इंट्रोड्यूस हुआ है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर फाइनेंस सिलेबस. Coming to the management is completely theory portion in nature. So whenever the subject is theory, multiple revision is one of the key area that you need to follow, right? So multiple revisions करना बहुत ज़रूरी हो जाता है theory subjects के अंदर. Here we are having the basics of management, then we have organizational behavior, personality, right? Leadership, motivation, ethics at the workplace, right? अभी मैं बैठ के पूरा रीड नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, बिकॉज आई नो आपने बहुत बार इसको रीड कर रखा है, राइट? नहीं भी कर रखा हो तो आप एक बार कर सकते हो. बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, कोई क्वेरी हो तो हमेशा मेरे को रीच आउट कर सकते हो, राइट? माई टेलीग्राम हैंडल इज CA प्रतीक फाइनेंस. अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. नाउ वी हैव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर ये तो फाइनेंस में भी था, मैनेजमेंट में भी आ गया. देखो फाइनेंस में था कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकिंग, राइट? यहां पे है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट. सो डेफिनेटली थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस आने वाला है. दैट विल बी मोर ऑफ बैंकिंग स्पेसिफिक, कि बैंकिंग में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे रखें, कॉर्पोरेट एंटिटीज में कैसे रखें. एंड दिस इज मोर अबाउट मैनेजमेंट, राइट? द मैनेजरियल एस्पेक्ट. फिर है कम्युनिकेशन. सो डेफिनेटली ये मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत हाई स्कोरिंग हो सकता है. फाइनेंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए हाई स्कोरिंग हो सकता है, राइट? मैनेजमेंट आपका प्योरली स्टैटिक रहने वाला है, फाइनेंस आपका डायनेमिक प्लस स्टैटिक रहने वाला है. Then if I talk about the cutoff trend, you can here see the cutoff trend as well. अगर मैं phase 1 की बात करूं, so in 2025 this was the cutoff. phase 2 का तो अभी एग्जाम होना बाकी है, right? So definitely उसके बारे में भी हम बात करेंगे. This is the 2024 का, 2023 का और 2022 का cutoff. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि phase 1 का cutoff यहाँ पे continuously, I can say broadly it is in increasing trend only if I ignore the 2023. So phase 1 definitely आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, एंड यू नीड टू मैनेज इट, यू नीड टू डू इट वेरी वेल. फिर उसके बाद अगर मैं फेज 2 की बात करूं, सो दिस इज द अग्रीगेट कट ऑफ लेवल, राइट? तो यहाँ पे आपको फेज 2 के लिए भी ये वाला टारगेट सेट करके रखना चाहिए कि एटलीस्ट 175 शुड बी योर बेयर मिनिमम टारगेट दैट यू शुड हैव इन योर फेज 2 एग्जामिनेशन, एंड दिस इज योर फाइनल कट ऑफ, राइट? ये आपका फाइनल कट ऑफ रहता है. सो जब कट ऑफ हमारे सामने रहता है तो वी शुड हैव अ टारगेट हमारे आय के सामने. अब अगर टारगेट नहीं होता है ना, तो फिर क्या होता है, हमारा बीच में विजन चला जाता है कहीं ना कहीं, राइट? हम थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं. तो हमारा टारगेट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमको कितने मार्क्स लेके आने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. अगर आपको और पुराना कट ऑफ देखना है तो दिस इज 2018, 2019, 2021 का कट ऑफ भी इस पीपीटी में. लेटर ऑन डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी एंड यू कैन रीड द कट ऑफ, यू कैन हैव अ लुक एट द कट ऑफ. बट ब्रॉडली आपको मैं कहूँ तो आरबीआई का कट ऑफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं करता है. Okay, then if I talk about salary, here is your salary. Your monthly gross emoluments will be anywhere around 1,50,300 something. और आपके इसके अंदर बहुत सारे components भी रहते हैं, like HRA, DA, and there are so many other benefits as well. Broadly अगर मैं CTC की बात करूँ तो आपका anywhere around 32 to 34 lakhs हो जाता है at RBI. Grade B level इसके अंदर सब कुछ include कर लिया गया है, राइट? इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है. इफ आई टॉक अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट, इट इज़ वेरी गुड, राइट? जनरली मैंने कभी नेगेटिविटी सुनी नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? 5 day वीक रहता है आपका यहाँ पे ऑब्वियसली, प्लस एक बार जो आरबीआई में चले जाता है वो काफ़ी टाइम वहाँ पे रहना पसंद करता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2026. सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो अवर यूट्यूब चैनल
For finance, I'm taking finance current affairs. For live mint, Mannat ma'am is also taking the session. For PIB, Payal ma'am is taking the session. And for management, वर्षा मैम इज टेकिंग द सेशन. सो आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द बेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2026. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज डली हुई है, सो दैट यू कैन ऑल्सो रेफर. हर सब्जेक्ट के लिए अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डली हुई है, सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन हेल्पफुल फॉर यू ऑल, राइट? So do follow the preparation strategy that is already there on our channel related to different subjects. You can also check out the paid course as well if you are seeking for mentorship. सर आरबीआई ग्रेड ए का क्या हुआ? बहुत सारे वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे कि आरबीआई ग्रेड ए आने वाला है. अभी एज ऑफ नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग वी डोंट हैव एनी सच इन्फॉर्मेशन. सो मुझे नहीं लगता कि अभी आपका आरबीआई ग्रेड बी आने वाला है, राइट? आपका आरबीआई ग्रेड बी ही जनरली हर साल आता है. ग्रेड ए के बारे में कुछ रूमर्स थे. एज ऑफ नाउ वो रूमर्स ही हैं until and unless we have some clarification from the regulatory body, from the RBI itself. अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली विल मेक यू उस टाइम पे ही विल मेक यू अवेयर about the same updates. But as of now we don't have any news related to RBI grade A examination. Plus कुछ बीच में डिस्कशन हुआ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में, so there is no such ongoing discussion as of now. So आप वहाँ पे RBI grade A के बारे में ना सोचो अभी के लिए. जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता वो, तब तक कोई मतलब नहीं है. इट्स बेटर कि आप अपनी एनर्जी को आरबीआई ग्रेड बी पे फोकस करो और उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो. एंड फॉर दैट वी आर हैविंग अ 101 मेंटोरशिप प्रोग्राम. दिस इज द AIR 101 मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2026. सो यहाँ पे खुद आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो AIR 1 स्कोर कर चुके हैं वो आपको गाइड करने वाले हैं. प्लस बहुत सारे मेंटोर्स रहेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो विल बी गेटिंग 101 सुपर मेंटोर सेशन विद द आरबीआई with the rank 1 who has scored a rank 1 in the RBI grade B examination. और मंथली आपके मेंटोर्स के साथ भी यहाँ पे सेशंस रहने वाले. दिस कोर्स इज inclusive of each and everything, live classes, notes, books, everything, and you will be having the access to RBI grade B 2026 के all the batches, right? So this is a complete course I can say जहाँ पे आपको और भी कुछ रेफर करने की नीड नहीं पड़ने वाली है. अच्छा गाइस, तो आज के लिए इतना ही. इन केस इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट मी नो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.